नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण पाटिल आज एक भारत का राज्यपत्र द गैजेट ऑफ इंडिया के बारे में एक गैजेट जो पब्लिश हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ आप देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर DL 330040/99। तो इसके बारे में आयुर्वेदिक सर्जन्स को या आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर को क्या क्या सुविधा दिए गए हैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। ये पब्लिश हुआ December 29th of 2023। सो सीधा चलेंगे हम पेज नंबर 42 पर। इन द पेज नंबर 42, चैप्टर 3, राइट्स एंड privileges of the practitioner. According to this chapter, a medical practitioner or a Ayurvedic medical practitioner can call himself as a registered medical practitioner. मेडिसिन का एडवर्टाइजमेंट का जो पॉम्पलेट्स आते थे उस पर लिखा होता था कि वो ओनली फॉर द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। अब BMS या BMS MD BMS MS he can put himself as a registered medical practitioner और वैद्य और डॉक्टर। Okay, Hakim and Vaidya are as for the Unani people, registered medical practitioner or Vaidya or a doctor. So short form for Vaidya is VD and doctor, as you know, DR dot. Registered medical practitioner. Then who is the registered medical practitioner? So when you go for a Google, a legal definition for the registered medical practitioner. A registered medical practitioner means a medical practitioner who possesses any medical qualification as defined in the clause of Section 2 of Indian Medical Council Act 1956 and whose name has been entered in the state medical register. So that is the definition of the registered medical practitioner. So now you can put yourself as a registered medical practitioner or Vaidya or else a doctor. So next comes the right of practitioner to issue certain certificates. So not only the fitness certificate, so now you can produce a disability certificate also. This is a major certificate, major medical certificate. So okay, so not only the fitness or illness, so you can give the disability certificate also based on the disability scoring and all you can use, and you can give the disability certificate. Next one is give a evidence at any inquest or in any court of law as an expert. So being a Ayurvedic doctor, so you can give the uh, opinion on any inquiry or any inquest in the court of the law as an expert opinion also you can give in the court of law. So इसके बाद और क्या क्या होके काम सकते हैं, एक एक आयुर्वेदिक डॉक्टर क्या क्या बन के काम कर सकते हैं। वो फिजिशियन बन के काम कर सकते हैं, उसका क्वालिफिकेशन है तो सर्जन बन के काम कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन है तो टीचर बन के काम कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बन के काम कर सकते हैं, हेल्थ एडवाइजर बन के काम कर सकते हैं, एज ए कंसल्टेंट करके काम कर सकते हैं, कोई PhD वगैरह किया तो वो रिसर्चर बन के भी काम कर सकते हैं इन द हॉस्पिटल इन्फर्टी लेइंग इन द हॉस्पिटल लाइक दैट। सो और क्या है इसमें, the practitioner shall have the right to practice any such type of medicine. Any such type of medicine किसके लिए बोला है? Any such type of medicine means आयुर्वेदा एंड वेस्टर्न मेडिसिन, ऐसा हो सकता है क्या? सो देखेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ हिज क्वालिफिकेशन। टू द एक्सटेंट ऑफ हिज क्वालिफिकेशन, कैसे उसका क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से वो एनी मेडिसिन को प्रैक्टिस कर सकता है एज रिकॉग्नाइज्ड अंडर चैप्टर 6 ऑफ एक्ट और टू द एक्सटेंट ऑफ द सिलेबस। तो सिलेबस कैसा है उसके हिसाब से आप बेस्ड ऑन योर एक्सटेंट ऑफ हिज योर क्वालिफिकेशन यू कैन प्रैक्टिस। सो सिलेबस देखिए आप, ये सिलेबस से सेम मतलब NCISM का सिलेबस सेकेंड मतलब प्रीवियस सिलेबस ऑफ द द्रव्य गुणा से देखिएगा। ये पूरा फार्माकोलॉजी यहाँ है, इंट्रोडक्शन
Definition, scope, pharmacology and principles of the general pharmacology, brief knowledge of the pharmacology of the following: anesthetics, CNS, depressants, sedatives, hypnotics, tranquilizers, antipyretics, analgesics, antiepileptics, antihypertensives, anti-anginal, antiplatelet, hypolipidemic, hemopoietic, coagulants, bronchodilators, aerosols, inhalants, expectorants, digestants, carminatives, antacids, ulcer, laxative, antidiarrheal, antiemetic, hepatoprotective, diuretics, antidiuretics, lithotropics, anti-inflammatory, hormonal therapy, anti-obesity, anti-diabetic, anti-thyroid, ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन होना चाहिए, गैलेक्टोगोग्यूज, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, स्टिप्टिक्स, एंटीहिस्टामाइन्स, एंटीमाइक्रोबियल्स, एंटीबायोटिक्स, एंटी मलेरियल, एंटी अमीबिसाइडल, एंटी फाइलेरियल. सो एंटायर फार्माकोलॉजी से. सो यहाँ क्या बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, और द एक्सटेंट ऑफ द सिलेबस. सो सिलेबस तो पूरा है. सो एज द एक्सटेंट ऑफ सिलेबस, so you can practice which is explained in the minimum standard of education, that is MSE, or minimum standard of requirement. So जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से आप जो भी मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी ट्रेनिंग मिला है उसके हिसाब से भी आप काम कर सकते हैं, और मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन के हिसाब से जो सिलेबस के है उसके हिसाब से भी आप you can prescribe. Just look into here, just I repeat it here: the practitioner shall have the right to practice any such type of medicine. सो ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है मैं सही हूँ और हो सकता है मैं गलत भी हूँ. सो सिलेबस के हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. द प्रैक्टिशनर shall have a right to use such instrument either in the clinical, surgical or any other medical specialty for a diagnosis. से अब इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ये मेडिसिन के बारे में हो गया. सो उसका सब क्लासिफाई पॉइंट नंबर 19, वन जो है वो मेडिसिन के बारे में, जो टू है सो दैट इज फॉर द इंस्ट्रूमेंट for the clinical or surgical, for the diagnosis and the treatment and the mitigation of the diseases. So you can use any such of medical equipments. So next point number 3. सो नाउ इट ये मेडिसिन के बारे में, ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में. नाउ ये एडवाइस के बारे में या प्रिस्क्रिप्शन के बारे में. एडवाइस, राइट टू एडवाइस और प्रिस्क्राइब और कंडक्ट any such medical procedure or surgery, or advise, prescribe or conduct any such of investigative test procedures, or give any such medical advice to the extent of his qualification and recognition. So okay, so point number 4 जो है, देखिए यहाँ, right to conduct any such emergency procedures or administer any such medicine to the patient at the time of emergency as a part of his duty. सो आपका ड्यूटी के हिसाब से, आपका जो ट्रेनिंग के हिसाब से या सिलेबस के हिसाब से आप जो है इमरजेंसी टाइम में आप मेडिसिन दे सकते हैं. So you can, next point is, fifth point is, you can you have a right to practice a telemedicine. आप टेलीमेडिसिन के थ्रू मेडिसिन, मतलब मेडिसिन बोल भी सकते हैं या किसी से आप सुन भी सकते हैं. So you can use that, you can practice the telemedicine. Okay. So next one is, the practitioner shall have the right to practice the procedure required to practice Ashtanga Ayurveda supplemented with the modern advancements. सो अष्टांग आयुर्वेदा आप प्रैक्टिस करने के लिए, अष्टांग आयुर्वेद काया बाला ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंश जरारोशान. सो आप प्रैक्टिस करने के लिए, मेडिसिन या सर्जरी प्रैक्टिस करने के लिए आप मॉडर्न एडवांसमेंट्स का यूज कर सकते हैं. एज मेंशन्ड इन द कॉम्पेडियम्स ऑफ द आयुर्वेदा, एज मेंशन्ड इन द कॉम्पेडियम्स ऑफ आयुर्वेदा, यू कैन प्रैक्टिस मॉडर्न एडवांसमेंट्स आल्सो. और लास्ट में बोलते हैं, दिस रेगुलेशन शेल नॉट इन एनी मैनर अफेक्ट द एग्जिस्टिंग राइट. आपका कोई भी राइट्स है जो विच इज गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दिस रेगुलेशन शेल नॉट बी इन एनी मैनर अफेक्ट. सो आपका कोई राइट्स है जो विच इज गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, सो उस राइट्स को ये इफेक्ट नहीं करेगा. अगर एक्स्ट्रा कुछ आपका राइट्स है इसके, ये जो भी बोल के उसको, सिर्फ इतना ही नहीं जो पहले गैजेट में आया वो भी आपका राइट्स है, जैसे कि
सर्जरी कितनी कौन कौन सा एक एम एस शल्य वाले सर्जरी कर सकते हैं, वो अलग है। उसका भी ऐसे मेरा वीडियो है, आप चाहे तो देख सकते हैं। सो टोटली इस गैजेट में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो भी है, एक है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एज पर माय ओपिनियन and disability certificate. Okay, and he can give as a expert. His witness as can be taken as a expert witness in the court of the law. So और क्या important है? So this one. The practitioner shall have the right to practice any such type of medicine to the extent of his qualification. Okay, next, extent of the syllabus that is included in the minimum standard of education. This is the most important part. So which support, see, this is my personal opinion, so which support the practicing of western medicine. ओके, अब ऑलरेडी 13 स्टेट्स में जो प्रैक्टिस करने के अलाउ है, सो बाकी स्टेट्स भी इस पर, स्टेट गवर्नमेंट भी इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और रिक्वायर्ड स्टेप्स लेना चाहिए, क्योंकि एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर आयुर्वेदा प्रैक्टिस करने के लिए भी आज का हालत में मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, और कुछ हद तक कुछ कंडीशन में मॉडर्न मेडिसिन्स यूज़ करना भी उतना ही ज़रूरी है। आज कैसे एक बीपी मॉनिटर के बिना, एक ग्लूकोमीटर के बिना, एक ब्लड टेस्ट के बिना, एक स्टेथोस्कोप के बिना एक आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? मतलब अगर किए तो भी वो पूरा इनजस्टिस टू द पेशेंट हो जाएगा। सो वी कैन मोर पर्टिकुलर इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। सो टू ऐसे ही जैसे हमको इक्विपमेंट्स के बिना प्रैक्टिस करना कितना इम्प्रैक्टिकल होता है, वैसे ही मॉडर्न मेडिसिन के बिना प्रैक्टिस करना थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है। सो टू प्रैक्टिस सर्जिकल, टू हैव सर्जिकल प्रैक्टिस, वी नीड टू टेक सम हेल्प ऑफ द सम मॉडर्न मेडिसिन। सो ये जितना हो सके उतना जल्दी स्टेट हेल्थ सेक्टर को ये समझ में आना चाहिए और वो नेसेसरी स्टेप्स लेना चाहिए। सो दे हैव टू परमिट फॉर यूजिंग द वेस्टर्न मेडिसिन फॉर द आयुर्वेदिक डॉक्टर। सो आपको कुछ इस वीडियो से यूज़ हुआ तो काइंडली शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Thank you वन एंड ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो।